کے تاروں کو اشارے سے بلا لو، گر کونین کی دولت میں پالوں، کال کا داس سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے، میں کہوں نہ لینے محمد کو آنکھوں سے لگا لوں۔ سبحان ہندو اللہ۔ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی مجھے کہے کہ آسمان کے ستارے تو لے گا، کونین کی دولت لے گا، تو کہتا ہے میں بس یہ پسند کرتا ہوں کہ نبی پاک کے نالین کی خاک آنکھوں سے لگا لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ اس لڑکی نے خاک لے لینے کے بعد آئی، باپ کو دی آنکھوں میں لگائی، لگاتے ہی اس کی آنکھوں میں نور آنا شروع ہو گیا، نور آنا شروع ہوا۔ اب باپ پوچھتا ہے کہ بیٹی بڑی اچھی دوائی لائی ہے، بتا کہاں سے لائی؟ کہا کیا ہے میرے باپ، اگر تو برا نہ مانے میں بتاتا ہوں یہ دوائی کہاں سے لائی ہوں۔ کہا کہ جنہیں محمد عربی کہتے ہیں، جنہیں محمد عربی کہتے ہیں ان کے نالین کی خاک لائی ہوں۔ اب اس باپ نے کیا کیا کہ ہاتھ میں چھری لی، آنکھ نکالنے لگا، کہنے لگا کہ آنکھ مجھے پسند نہیں لیکن ان کے قدموں کی خاک میری آنکھوں میں نہیں پڑنی چاہیے۔ اور جیسے آنکھ نکالنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ نور اور پیدا فرما دیا۔ اب میں آپ کے ضمیر پر، آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینا چاہتا ہوں کہ جس نبی کے پاؤں کی نالین کی خاک کا یہ عالم ہے، اس نبی کی ذات کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سانو سارے نام تو پڑھیں گے میرے ساتھ، سانو سارے نام تو سونے دانا سونا۔ سبحان اللہ۔ آپ پڑھے سانو سارے نام تو سونے دانا سونا، سانو سارے نام تو سونے دانا سونا۔ نام تو ہے ہی پیارا، پر جس جگہ نبی تشریف لائے وہ جگہ بھی ہمیں پیاری لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے شہرا تو، سانو سارے شہرا تو، بڑے نبی کی نات، سانو سارے شہرا تو سونے دا گراں سونا، سانو سارے سبحان شہرا اللہ۔ تو سونے دا گراں سونا۔ یہ پروگرام چل رہے میلاد شریف کی آواز ساتھ نہیں دے رہی برابر، بہرحال آپ تھوڑا ساتھ دیں۔ آپ تو سنتے ہیں نا، آپ بیان تو نہیں کرتے ہیں، بہرحال شاعر کہتے ہیں کہ محشر دی تمازت وچ سرکار نے آنا ہے، سبحان اللہ۔ محشر دی تمازت وچ سرکار نے آنا ہے، ساڈے سر اتے کر دے سی۔ اب سب پڑھیں گے تو تب میں پڑھوں گا آگے۔ ساڈے سر اتے کر دے سی، ساڈے سر اتے کر دے سی۔ آپ نہ بولے، گرو نانک بھی کہتا ہے میم من محمد نو من کتاباں چار، من خدا رسول نو سچا ہے دربار، سچا ہے دربار۔ گرو نانک کہہ رہا ہے سچا ہے دربار، وہاں وہ بھی بولتا ہے، شجر حجر بولتے ہیں، چرند پرند بولتے ہیں، آپ ہی نبی کی نعت پڑھیں۔ محشر دی تمازت وچ سرکار نے آنا ہے، ساڈے سر اتے کر دے سی، ساڈے سر اتے کر دے سی، کملی دیو چھا سونا، ساڈے سر اتے کر دے سی، کملی دیو چھا سونا۔ آدم علیہ السلام بھی اچھے ہیں، شیس علیہ السلام بھی اچھے ہیں، حضرت ابراہیم اچھے، اسماعیل اچھے، یعقوب علیہ السلام اچھے، عیسیٰ علیہ السلام اچھے، موسیٰ علیہ السلام اچھے، سب نبی اچھے، لیکن سب نبیوں سے اچھا ہمارا نبی۔ سانو سارے نام تو سرکار دا نا سونا۔ تو حضرات یہ سرکار کی شان ہے، یہ پروگرام کرنے کا مقصد، یہ سرکار کی شان بیان کرنے کا مقصد کہ تاکہ سرکار مدینہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، سبحان سرکار اللہ۔ مدینہ کا پیار ہمارے دل میں آ جائے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں جی پاس صاحب سرکار مدینہ کی ہی بات کرتے ہو، کوئی اور بات نہیں کرتے ہو۔ میرا یہ دعویٰ ہے جو پکا سچا رسول اللہ کا عاشق بن جاتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے، نہ اس کی نگاہ غیر کی طرف اٹھتی ہے، نہ وہ زبان سے غلط سلط باتیں کرتا ہے، نہ اس کے خیالات میں
बुरी बातें आती हैं। बस मैं आपकी खिदमत में मिलाद का पैगाम पेश करके आपसे रुखसत हो जाता हूँ। मेरे और आपके आका, ये मैंने सरकार मदीना की शान बयान की, अब मैं थोड़ा सारा मकसद बयान करके चला जाऊँ। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम दुनिया में किस शान के साथ आए हैं और हमारे तुम्हारे लिए क्या पैगाम लेके आए हैं। मेरी बात ये है कि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो पहला काम सरकार मदीना ने क्या किया? पहला काम ये था, वो अनपढ़ लोग थे, वो उम्मी लोग थे, उनके हालात ये थे, अगर कोई जानवर कहीं खड़ा है उसे ज़िबा नहीं करते थे, खड़े खड़े ही उसके जिस्म में से गोश्त काट करके पका लेते थे। इस तरह के हालात थे, जहालत आम थी। मेरे नबी ने सबसे पहले उनकी जिंदगी में से जहालत को निकाला और इल्म को दाखिल किया। सुभान अल्लाह। इल्म को दाखिल किया है। अब सरकार मदीना अलैहिस्सलाम, आप मैं अगर उसी पे बयान करता हूँ काफ़ी बयान हो सकता है। बहरहाल जहाँ सरकार मदीना का मिलाद बयान हो वहाँ मकसद मिलाद भी बयान होना चाहिए। और हजरत इस बात पर बहुत जोर देते हैं, मिलाद भी बयान करो और मकसद मिलाद भी बयान करो। मकसद मिलाद ये है, जलसे का मकसद ये है, जगह जगह चर्चे करने का मकसद ये है कि सरकार मदीना ने उनकी जिंदगी में से जहालत को निकाला और इल्म दाखिल किया। इल्म दाखिल किया। और फिर वो लोग कि जिनके पास कुछ नहीं था, तहजीब नहीं थी, खाने पीने के ढंग नहीं था, लेकिन फिर वो ऐसे दुनिया में छाए, पूरी दुनिया में फैलते चले गए, फैलते चले गए। इस शान के साथ दोस्तों और बुजुर्गों, अगर वो कहीं कारोबार करने गए हैं तो उन्होंने उस कारोबार को उस इल्म की रोशनी में इतना असूली बनाया है, इतना असूली बनाया है, उनका कारोबार देख करके लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। सरकार मदीना ने उनकी जिंदगी में से जहालत को निकाल करके पैगाम दिया, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर के कब्र की गोद तक। और मैं यहाँ एक जुमला फिक्रिया दे रहा हूँ आपको। साल के 365 दिन होते हैं, अगर हर दिन में एक मसला हम हासिल करना चाहें तो साल में 365 मसला हम हासिल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसलिए हमें इस तलब में रहना है, हमें इस जुस्तजू में रहना है। सरकार मदीना ने उन लोगों की जिंदगी में से जहालत को निकाल करके क्या दाखिल किया? बोले ना जरा। इल्म दाखिल किया, जहालत को निकाला, इल्म दाखिल किया। इस पे काफी कलाम हो सकता है। और दूसरी चीज मेरे नबी ने उन बद्दू लोगों की जिंदगी में क्या दाखिल की कि आपने अपनी जिंदगी को बामकसद बनाना है, बामकसद बनाना है। हम जलसे में आ करके भी अपनी जिंदगी को बामकसद नहीं बना सकते। मसलन क्या होता है, किसी का इंतकाल हो जाए, हमारी ये नीयत नहीं होती कि किसी मोमिन का इंतकाल हो गया है, हम अल्लाह की रजा के लिए जनाजा पढ़ने जा रहे हैं। हमारा मकसद ये होता है आज हम जाएंगे कल वो आए। जिंदगी को बामकसद बनाया जाए। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने हमें दूसरा जो पैगाम दिया कि हम आप अपनी जिंदगी को बामकसद बनाए। हम 11वीं करते हैं, महीना 11वीं का आ रहा है। सरकार को से पाक रहमा कि उस्ताद गिरामी किसी वजह से उनसे चिढ़ करते थे। सरकार को से पाक के उस्ताद ने आपको पुल से उठाया और दरिया में फेंक दिया, आपके कपड़े भी भीग गए, किताबें भी भीग गई। आपके वालिदैन ने पूछा, बेटा अब्दुल कादिर क्या हुआ? आपके कपड़े भी भीग गए, किताबें भी भीग गई, क्या हुआ? कहा कि जुमे का दिन था, मैंने गुस्ल नहीं किया हुआ था, मुझे किसी ने जो है पुल से नीचे फेंक दिया और पानी तक पहुंचते हुए मैंने गुस्ल की नियत कर ली थी कि आज जुमा है, गुस्ल नहीं किया तो सुन्नत अदा हो जाए। इसलिए हम जितने भी हम काम करते हैं हम उनको बामकसद बनाए और नीयतों का किबला दुरुस्त करें, नीयतों का किबला दुरुस्त करें। और तीसरे नंबर पे मेरे और आपके नबी ने उनकी जिंदगी में तीसरी चीज जो जहालत से निकाल करके दाखिल की वो सिद्ध को सफा, यानी बात सच्ची करनी है और अपने दिल को साफ सुथरा रखना है, दिल को पाक रखना है, साफ सुथरा रखना है। आज हमारी ज़बानें पाक नहीं है, आज हमारा दिल पाक नहीं है, दिमाग पाक नहीं है, फिक्र पाक नहीं है, सोच पाक नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद दोस्तों और बुजुर्गों, आया रवायात के अंदर कि जब कोई बंदा अपनी ज़बान को पाक रखता है, ज़बान को पाक रखता है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर अच्छी बातें करता है, नाते पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला हर जुमले पे एक फरिश्ता पैदा फरमाता है, सुभान अल्लाह, आसमान में महवे परवाज़ रहता है। और जब वो बंदा दुनिया से चला जाता है, अल्लाह फरमाता जाओ जाकर के मेरे बंदे की कब्र पे खड़े हो जाओ, सुबह क़यामत तक इसके लिए दुआ करते रहो। सुभान अल्लाह। ज़बान पर सच्चाई लाए, सच कहें और दिल को साफ सुथरा रखें। सुभान अल्लाह। ये दिल क्या है, बादशाह है। सरकार मदीना ने फरमाया इंसान के जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो ठीक रहेगा तो इंसान का जिस्म ठीक रहेगा, अगर वो बिगड़ गया तो सारा निजाम बिगड़ जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो क्या है? सरकार ने फरमाया वो दिल है। आप देखें कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के पास जब लोग आए, ख्वाजा साहब के पास लोग आए, गौसे पाक के पास आए, बुजुर्गों के पास आए, जितने लोग आए मेरे नबी ने उनके जिस्म को नहीं बदला, पहले उनके दिल का बदला है।
सुभान और जब अल्लाह। दिल बदल जाता है तो जिस्म बदल जाता है, दिल बदलता है तो ज़बानें बदल जाती हैं, दिल बदलता है तो दिमाग बदल जाता है, दिल बदलता है तो नज़र जिधर जा रही है उधर से भटक करके मदीने की तरफ नज़र का रुख हो जाता है। और जब किसी का दिल बन जाता है दोस्तों और बुजुर्गों, फिर क्या होता है? एक मिसाल दे दूं, अब अक्सर उलमाए किराम तो जानते हैं, आपने भी बारहा सुना होगा, दो बुजुर्ग गुजरे, इमाम हामिद ग़ज़ाली और मोहम्मद ग़ज़ाली। मोहम्मद ग़ज़ाली बहुत बड़े इल्म के मालिक थे और हामिद ग़ज़ाली वो दिलों को पढ़ा करते थे। एक दिन मोहम्मद ग़ज़ाली ने कहा अपनी वालदा से जाके कि अहमद ग़ज़ाली मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता। आप इसे पूछें, लोग मजाक उड़ाते हैं कि आप इतने बड़े आलिम और आपका भाई आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ता। माँ ने समझाया कि बेटा मोहम्मद ग़ज़ाली बड़ा आलिम है, उसके पीछे नमाज पढ़ा करो, बड़ा अच्छा है, नेक है, आलिम भी है, सब कुछ है, उसके पीछे नमाज पढ़ा करो। एक दिन अहमद ग़ज़ाली ने नियत बांध ली, नमाज पढ़ते रहे, एक रकत पढ़ी या दो रकतें पढ़ी, नमाज तोड़ करके चले गए। फिर मोहम्मद ग़ज़ाली अलैहिर्रहमा जाके माँ से शिकायत करते हैं, पहले ये नमाज नहीं पढ़ता था तो मुझे लोग कहते तो थे, बर्दाश्त कर लेता था, आज के बाद लोग कहेंगे कि नमाज तोड़ करके चला गया, क्या मामला है? माँ भी माँ थी, माँ ने कहा कि बेटा पहले तो पढ़ता ही नहीं था, आज पढ़ी तो दो रकतें पढ़ी फिर छोड़ के चला गया, क्या मामला है? कहा क्या है मेरी वालिदा, जब तक ये नमाज पढ़ता रहा मैं इनकी इक्तदा में रहा और जब ये नमाज के अंदर मसाइल में उलझ गए मैंने नमाज तोड़ दी। अब जब दिल बन जाता है तो दिलों को पढ़ते हैं। फिर माँ भी माँ थी, माँ ने कहा कि बेटा तू उसकी इक्तदा में नमाज पढ़ रहा था या उसके दिल को पढ़ रहा था? तू नमाज पढ़ रहा था कि उसके दिल को पढ़ रहा था? और तीसरी चीज सिद्क़ व सफ़ा, और चौथी चीज मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अखलाक अता फरमाए, हमें तुम्हें अखलाक अता फरमाए। और मैं आपकी खिदमत में लास्ट बात कह के गुजर जाऊं, सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांद के टुकड़े बाद के बाद दीगर पानी के चश्मे जारी किए, सूरज को पलटाया, लेकिन मेरे नबी के अखलाक को देख करके जो लोग मुतासिर हुए, बारहा वो वाक़या आपको भी याद है, मैं सिर्फ इशारा करके चला जाऊं, वो बुढ़िया जो गठरी लेकर के अपने माँ बाप के घर जा रही थी, सरकार मदीना ने उसकी गठरी को उठा लिया, कहा कहाँ जा रही हो? कहा माँ बाप के घर जा रही हो। क्यों जा रही हो? कहा मोहम्मद अरबी सुना बड़ा भारी जादूगर है, उससे भाग करके मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ। सरकार मदीना जब आप उसकी गठरी उठा करके लेके चले, मंदिर पे पहुंचा दिया बुढ़िया को, सरकार ने फरमाया कि बुढ़िया मुबारक हो, तू माँ बाप के घर आ गई है, मुबारक हो तुझे माँ बाप के घर आ गए। कहा आप बड़े हसीन हैं, आप बड़े जमील हैं, आपका चेहरा देख करके कुछ और याद आ रहा है हमें, लेकिन ये बताओ उस मोहम्मद अरबी के सामने हरगिज़ न जाना। आका सलाम ने फरमाया वो मोहम्मद अरबी मैं ही तो हूँ जिससे तू मक्के से भाग करके यहाँ आ गई है। अब वो बुढ़िया कहती है अगर आप मोहम्मद अरबी हैं तो मैं यहाँ क्या लेने आई हूँ? अब मुझे कलमा पढ़ाओ और दाखिले इस्लाम करो। अब सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वो बुढ़िया चलती है, कहती है आका जहाँ जिंदगी आप पसंद करेंगे मुझे भी वहीं जाना है, मैंने यहाँ क्या लेना है। शायर ने बड़ा ही प्यारा तर्जुमा कर दिया कि वो बुढ़िया कहती है कि दीदे हबीब मेरी ईद हो गई या रसूलल्लाह, आपके अखलाक देख के मैंने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान बन गई, आपकी दीद हो गई कि दीदे हबीब मेरी ईद हो गई, दीदे हबीब मेरी ईद हो गई, मेरा हज अकबरी तेरी दीद हो गई। अब सरकार मदीना ने जब उस बुढ़िया की वो गठरी उठाई, वो देखती है कि साया न गठरी का है, न जिस्म का है, न कपड़ों का है। बुढ़िया कहती है तेरा उच्चा है ना माँ पर नहीं अच्छा माँ, तेरिया वेख दामा में मुरीद हो गई। और चौथी चीज अखलाक आका अलैहिस्सलाम ने हमें तुम्हें दी। हम अखलाक अपने अंदर लाए और फिर क्या कि बड़ों की इज्जत करो, छोटों पे शफकत करो। फिर सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें तुम्हें तालीम दी और वो दरगुजर का मामला दिया कि दरगुजर सीखो, दरगुजर करना। आज शोहर जनाबे वाला बीवी को माफ करने के लिए तैयार, बीवी शोहर को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, माँ बाप बच्चों को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, पड़ोसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, मामला ये है कि हमारा जाहिर भी मुसलमान हो, बातिन भी मुसलमान हो, सोच मुसलमान हो, फिक्र मुसलमान हो। और फिर मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तालीम हमें तुम्हें दी वो ये है कि खिदमत की जाए, गरीबों की खिदमत की जाए, यतीमों की खिदमत की जाए, मिस्कीनों की खिदमत की जाए। और जितना बड़ा काम खिदमत के जरिए हो जाता है जिसका जो है शुमार नहीं कर सकता। और बहरहाल खिदमत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तुम्हें दी और सरकार मदीना ने उस बुढ़िया की वो खिदमत ही की है जिसकी वजह से उसने कलमा पढ़ा है। और जितने ये सूफिया किराम बुजुर्गान दीन हमें तुम्हें नजर आ रहे हैं जिनकी शान ये है कि दिन में हम देखें तो उनके मज़ारों पर झंडे नजर आते हैं, सुभान अल्लाह, दिन में झंडे नजर आते हैं,
اور رات کو چراغ نظر آتے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سینے سے لگایا ہے. اور لاسٹ جملہ کہہ کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. جس دن آپ کا بیٹا دلہا بنے آپ کو اچھا لگتا ہے. بیٹا دلہا بنے اچھا لگتا نہیں لگتا. ماں باپ کو اچھا لگتا سب بولے لگتا نہیں لگتا. جیسے بیٹا دلہا بنے ماں باپ کو اچھا لگتا ہے. اور اسی طرح جب کوئی بندہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی سیرت کو اپناتا ہے وہ بندہ اللہ کو اچھا لگتا ہے. اور دنیا کے امتحانوں میں اگر کوئی کسی کی نقل کرتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. اور یہاں سرکار مدینہ کی اگر کوئی نقل کرتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے. تو پھر رب فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب آپ فرما دیں اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلو یحببکم اللہ. کیا ملے گا؟ میں تم سے محبت کروں گا. وما توفیق الا باللہ. کہنے میں دل کو غلطی بتائی ہو میں آپ حضرات کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ.